Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, today I'm going to explain the fourth chapter of Class 2 Moral Science, that is punctuality. Today we will do the chapter 4 punctuality of standard 2 moral science. So the chapter name is punctuality which means समय का पालन. So समय का पालन हमें करना चाहिए या नहीं? And today we will do class 2 moral science chapter number 4 पंचुअलिटी. पंचुअलिटी का मतलब होता है समय का पालन, और समय का पालन करना हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर हम समय का पालन नहीं करेंगे तो हमें हमारी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी. इसलिए पंचुअलिटी इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ. So we will read the chapter, then I will explain it to you. So first I will read it. So please listen carefully. This is Miss Latecomer. She does not understand the meaning of being punctual. It means being on time, but she is never on time. She is always late. Let us count how many times she is late. She gets up late in the morning. No matter how fast she tries to be on time, we always see her running behind her school bus. If the bus driver sees her in the side view mirror, he stops for her. Otherwise, her father drops her to school. Her friends make faces and say, "Oh, when will she improve?" Miss Latecomer is not on time for the school assembly. The principal frowns at her, and the teacher takes her bag and adjusts her in the line. Sometimes she is not allowed to attend the assembly. She stands at the gate and joins her class after the assembly. The whole day, she frowns and keeps a sullen face. Why can't she be punctual? One day, the class had to go for a picnic to an amusement park. She could not imagine the idea of being late. Miss Latecomer promised herself that she would be on time. She packed her snacks at night. Her uniform was ready and shoes polished. Her bag was ready in the morning. Even before her mummy called out, she was out of bed. She was ready in no time. Her mother smiled at her, combed her hair neatly. Oh, she looked so different. She picked up her bag and went down. The bus driver gave a big welcoming smile. Her friends in the bus cheered for her. She felt very happy to be punctual. Smilingly, she reached the school. The principal patted her for being punctual. The class teacher also smiled at her. Miss Punctual, the punctuality monitor, pinned up a shining star on her collar for being on time. Miss Latecomer realized the importance of time and punctuality. She made a timetable and followed it. She did her homework on time. She completed all her jobs on time, slept on time, and got up on time. Like this, she became Miss Punctual. I have read the chapter and now I will explain it to you. So, let's start. This is Miss Latecomer. She does not understand the meaning of being punctual. It means being on time. But she is never on time. She is always late. Let us count how many times she is late. यहाँ एक स्टोरी है एक लड़की का जिसका नाम है मिस लेटकमर. उसे कभी भी पंचुअल का मतलब समझ नहीं आया, जिसका मतलब होता है पंचुअल का मतलब होता है बीइंग ऑन टाइम, बट
मिस लेट कमर जो थी वो कभी भी पंचुअल का मीनिंग समझती ही नहीं थी। वो हमेशा ही लेट होती थी, वो कभी भी टाइम पर नहीं होती थी। एंड नाउ वी विल काउंट कि वो हमेशा कितनी बार लेट होती थी, ये हम अभी काउंट करते हैं। सो शी गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। नो मैटर हाउ फास्ट शी ट्राइज टू बी ऑन टाइम, वी ऑलवेज सी हर रनिंग बिहाइंड हर स्कूल बस। वो सुबह हमेशा लेट उठती थी और वो कितना भी सोचे कि वो टाइम पर काम करे, बट वो हमेशा ही लेट हो जाती थी। हमेशा सुबह सुबह वो स्कूल बस के पीछे दौड़ती थी स्कूल बस पकड़ने के लिए। If the bus driver sees her in the side view mirror, he stops for her. Otherwise, her father drops her to school. Her friends makes faces and say, "Oh, when will she improve?" और जब भी अगर बस ड्राइवर जो थे वो ये साइड मिरर से अगर उसे देख लेते थे तो वो रुक जाते थे, बट अगर वो नहीं देख पाते थे तो उसके फादर ही उसे स्कूल ड्रॉप करते थे। मिस लेट कमर के फादर ही मिस लेट कमर को स्कूल ड्रॉप करते थे। और मिस लेट कमर की लेट होने की आदत से उसके सारे फ्रेंड्स अजीब तरह के फेसेस बनाते थे और उससे हमेशा बोलते थे डैट ओह व्हेन शी विल इम्प्रूव, यह लड़की कब सुधरेगी, कब ये टाइम पर करेगी अपना सारा काम। मिस लेट कमर इज नॉट ऑन टाइम फॉर द स्कूल असेंबली। द प्रिंसिपल frowns at her and teacher takes her bag and adjusts her in the line. जो मिस लेट कमर थी वो कभी भी स्कूल असेंबली पर टाइम पे नहीं पहुंचती थी, वो हमेशा ही लेट हो जाती थी। और जो प्रिंसिपल है वो मिस लेट कमर पे बहुत गुस्सा भी करते थे। और जो मिस लेट कमर की टीचर थी वो उसका बैग लेती थी और उसे स्कूल असेंबली में लाइन पर अच्छे से खड़ा कराती थी। Sometimes she is not allowed to attend the assembly. She stands at the gate and joins her class after the assembly. The whole day she frowns and keeps a sullen face. Why can't she be punctual? और कभी कभी तो उसे स्कूल असेंबली अटेंड करने को भी नहीं दिया जाता था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा लेट रहती थी और वो हमेशा ही गेट के पास खड़े होकर असेंबली देखती थी और फिर असेंबली के बाद अपनी क्लास को ज्वाइन करती थी। वो हमेशा ही वो दिन भर गुस्सा रहती थी और वो सोचती थी कि वाई कांट सी बी पंचुअल, कि वो पंचुअल क्यों नहीं हो सकती है। One day, the class had to go for a picnic to an amusement park. She could not imagine the idea of being late. Miss Latecomer promised herself that she would be on time. She packed her snacks at night. Her uniform was ready and shoes polished. Her bag was ready in the morning, even before her mummy called out. She was out of bed. She was ready in no time. Her mother smiled at her and combed her hair neatly. Oh, she looked so different. She picked up her bag and went down. The bus driver gave a big welcoming smile. Her friends in the bus cheered for her. So, Miss लेट कमर की क्लास एक दिन अम्यूजमेंट पार्क पिकनिक के लिए जा रही थी और जिस दिन पिकनिक था उस दिन मिस लेट कमर लेट होना नहीं चाहती थी। इसलिए मिस लेट कमर ने खुद को प्रॉमिस किया कि वो इस बार सारा काम अपना टाइम पर करेगी। इसलिए उसने अपना स्नैक्स और बैग्स रात में ही पैक कर लिए। यूनिफॉर्म भी उसका रेडी था एंड इवन सी पॉलिश्ड हर शूज। हर बैग वॉज टोटली रेडी। उसका बैग पूरी तरीके से तैयार था और सुबह मम्मी के उठाने से पहले वो खुद ही उठकर रेडी हो गई थी। हर मदर स्माइल्ड एट हर। और इसका यह बदला हुआ रूप देखकर उसकी मम्मी बहुत ही उस पे प्राउड फील कर रही थी, उस पे स्माइल करी। और फिर उसकी मम्मी ने उसका बाल बनाया और फिर जब वो टाइम पर थी ना, टाइम पर उसने सारा काम किया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। और फिर वो अपने बैग उठाई और नीचे अपने बस के पास गई और बस ड्राइवर भी उसे टाइम पर देख के बहुत खुश हुआ और बिग वेलकमिंग स्माइल।
एंड द बस ड्राइवर गेव अ बिग वेलकमिंग स्माइल टू हर। और जो मिस लेट कमर थी उसके फ्रेंड्स भी उसे चीयर किए। सी फेल्ट वेरी हैप्पी टू बी पंचुअल, और वो पंचुअल होकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। Smiling, she reached the school. The principal patted her for being punctual. The class teacher also smiled at her. Miss Punctual, the punctuality monitor, pinned up a shining star on her collar for being on time. और वो हंसते हंसते अपनी स्कूल पहुंची, और स्कूल पहुंचने के बाद जो स्कूल प्रिंसिपल थे वो उसे पैट किए, वो उसे शाबाशी दिए पंचुअल होने के लिए। उसकी क्लास टीचर भी उसे एक स्माइल दी, और मिस पंचुअल जो कि पंचुअलिटी मॉनिटर थी वो उसके कॉलर पे एक शाइनिंग स्टार लगाई पंचुअल होने के लिए। मिस लेट कमर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पंचुअलिटी। जो मिस लेट कमर थी उसे टाइम और पंचुअलिटी का इम्पोर्टेंस समझ आया। सी मेड अ टाइम टेबल एंड फॉलोड इट। सी डिड हर वर्क ऑन टाइम। सी कंप्लीटेड ऑल हर जॉब्स ऑन टाइम। सी स्लेप्ट on time and got up on time. Like this, she became punctual. और पंचुअल होने के लिए मिस लेट कमर ने एक टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो भी किया। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसे फॉलो भी किया, क्योंकि आजकल हम लोग भी टाइम टेबल बनाते हैं बट उसे फॉलो नहीं करते। बट जो मिस लेट कमर थी उसने जो टाइम टेबल बनाया था उसे वो फॉलो भी की। वो अपने सारे होमवर्क्स टाइम पर करती थी, सारे काम टाइम पर करती थी, सोती टाइम पे थी और उठती भी टाइम पे थी, और ऐसा टाइम टेबल फॉलो करके वह मिस पंचुअल बन गई। सो हमें भी मिस पंचुअल बनना है, और हमें भी अपने जो टाइम टेबल हमने जो क्रिएट किया है उसे फॉलो भी करना है। सो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा पंचुअल होना चाहिए, बिकॉज पंचुअलिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ एंड ऑल्सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अचीव आवर गोल्स। सो मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, एंड इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। And also please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the notifications of my upcoming videos. Thank you.